आशीर्वाद अगला एक कदम आगे चल। भक्तों से ही देश का मान है, देश भक्तों से ही देश की शान है। हम सब उस देश के खून हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। डायरेक्टर दून डिफेंस एकेडमी संदीप गुप्ता सर से इस कार्यक्रम को शुरू करने की इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद सर। गद गद कंठ से वंदन करता हूं, चरणों की धूलि को चंदन करता हूँ, परम पिता परमात्मा की करके वंदना, हृदय से सबका अभिनंदन करता हूँ। Honorable Commandant Ma'am, very respected academic head foundations, dignified teachers, and of course today's host, Dr. Giriraj Gupta ji, academic coordinators, my dearest Hampton, and brave cadets, good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening to all of you. Good evening, sir. Thank you for your response. First of all, on behalf of Sandeep Sir Doon Defense Academy, Pratham Bhatt Foundation course, I welcome you all here, and same time I wish from the Almighty of God that on completion of your 2-year residential course, you will undoubtedly hit your destination. It's my promise to you. I can understand you are living in a different environment, you are living with different cadets or different routine, but that is the beauty of the hostel. You are going to learn lot of things from this routine, from this campus. So please keep patience. 95% among us you are very strong. Only few are like feeling too much homesickness. So it's my humble request or humble advice to all of you. Please have patience. Please follow the safety norms all the time. Safety is priority. Nothing is important than the safety. And especially for you, if you have any small injury or major injury, you will be medically unfit. The third thing is discipline. Discipline is the key of success. I can give you a guarantee that your 80% success will be coming automatically. So please and please, it's my humble advice to you, be disciplined. Success doesn't come from the comfort zone. The more we sweat today, the less we bleed in war. In other words, the more we do the hard work today, you will feel more easy in your final exam or in your ND or SSB exams. So please work hard, focus on your target. We have set excellent path. We have navigated excellent path for you. It's your duty to continuously walk or run on that path. Don't drift from that path. That's all from my side. खत्म करने से पहले मैं 2 लाइन आपके साथ एक पेट्रोटिक सॉन्ग की गाऊंगा. And I need your full joy and enthusiasm with the good rhythm and pitch. Are you ready? Yes, sir.
मुझे तो 15 अगस्त की बूंदी याद आ गई कि बूंदी मिलेगी और छात्रों के जीवन में शिक्षक की विशेष जगह होती है। प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल छात्रों को आदर्श नागरिक बनाने के लिए उनका मार्गदर्शन करके राष्ट्र के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे बीच में उपस्थित माननीय प्रधानाध्यापक जी, मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ गदगद ध्वनि से प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय टी.एन. थपलियाल प्रिंसिपल सर का। Good evening, everyone. Today we have assembled here to welcome class 11th students. The routine of this school is already familiar from the day one. The day starts at 6:30 am. Foundation post Pratham Pak. Thank you. 17 वर्ष पहले एक छोटे से कोचिंग से, एक छोटे से रूम से कुछ छात्रों के साथ एक सपने को लेकर आज इस मुकाम तक, जहां एक नाम, 2 कैंपस और 3 एकेडमी, 2 डिफेंस एकेडमी, 2 सिविल एकेडमी एंड फाउंडेशन कोर्स प्रथम पर। यह सफर इतना आसान नहीं रहा। 2 डिफेंस एकेडमी में एनडीए, बॉयज एंड गर्ल्स, एयरफोर्स, एक्स एंड वाई ग्रुप, इंडियन नेवी, AASSR, मर्चेंट नेवी, MNS, CDSC और SSB 10,000 से ज्यादा लगभग बच्चे देश की सेवा में लगे हुए हैं। कई बच्चे रिटायर्ड होने भी शुरू हो चुके हैं। शिक्षा क्षेत्र से लेकर सेवा धर्म तक संदीप गुप्ता इनमें कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर रहे हैं। जाने वालों की जुबान पर जो वर्ड होता है, एक्चुअली वो वर्ड संदीप गुप्ता जी की डिक्शनरी में है ही नहीं। कायनात की तस्वीर बदलने वाले शानदार जज्बे से रोशन माननीय डायरेक्टर 2 डिफेंस एकेडमी संदीप गुप्ता जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं, जिन्हें चुनौतियां और निखारती हैं, जिसकी चमक देश की सरहदों की मोहताज नहीं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए संदीप गुप्ता जी का। Thank you, Gupta sir. I really don't understand what to say. Mr. Karamveer, our chief warden, has said exactly what I wanted to say. He already said. और प्रिंसिपल सर वो भी आपको वो बता चुकी है जो मैं बताना चाहता था। Anyway, respected principal Thaplial sir, commandant, chief warden, academic head, academic coordinator, admission coordinator, all the wardens, faculties, staff, and especially my dear cadets. आज का दिन मेरी जिंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज जब मैं आपको ऐसे यहाँ सामने देख रहा हूँ तो दो तीन चीजें तो बिल्कुल क्लियर होगी मुझे। अगर 10 दिन में हाथ मिल सकते हैं, जैसे आपकी क्लैप एक साथ बज रही है, तो 20 दिन में आपके कदम भी मिलने लगेंगे, 30 दिन में आपके विचार भी मिलने लगेंगे, और उसके बाद वो सपने भी मिलने लगेंगे जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। आज है 2 जुलाई 2022 और आज ही के दिन 32 इयर्स बैक, बिफोर 32 इयर्स, आज ही के दिन मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन की थी। ये कोइंसिडेंस है?
मेरा गुड लक है, आपका गुड लक है, आई डोंट नो, बट आप ही की तरह उस वक्त मैं एक नौजवान था, एक लड़का था, और मैंने INS का में रिपोर्टिंग की थी, सेम जैसे आज आप हेयर कट लेके बैठे हैं, इससे थोड़ा और बेटर था। लेकिन आज ही के दिन मैंने रिपोर्ट किया था INS का में, मेरा करियर इंडियन नेवी में 32 साल पहले, 32 ईयर पहले आज ही के दिन स्टार्ट हुआ था। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसकी मुझे बहुत खुशी है। डियर कैडेट्स, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एक्चुअली आई बिलीव इन एक्शन रादर देन वर्ड्स, बट कुछ चीज़ें मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि ये जो आपने डिसीजन लिया है, आपकी फैमिली ने डिसीजन लिया है यहाँ भेजने का आपको, और उसके बाद यहाँ जाने का आपको, तो DDA टू NDA का सफर अब हम साथ मिलकर तय करेंगे, आप अकेले नहीं। DDA से ही आपका प्रथम पद जो यहाँ पे स्टार्ट होगा और खड़कवासला में जाके वो रुकेगा, आपका अंतिम पद, वो हम साथ मिलकर तय करेंगे। ये जो आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग चलेगी 2 साल की, ये स्कूलिंग नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखना। It's not only schooling, it's a training, जिसमें आपका स्कूलिंग भी है, जिसमें आपकी प्रिपरेशन उस लेवल पे जाके होगी जब आप आपके एक्चुअल एग्जाम में जाके बैठेंगे, चाहे वो CBSE का एग्जाम हो, चाहे वो डिफेंस का एग्जाम हो, चाहे वो मर्चेंट नेवी का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जिंदगी का एग्जाम भी ना हो, आप यूं उसको क्वालिफाई करेंगे। वो सफर हम आप मिलकर तय करेंगे। और मैं, आप देखना आने वाले टाइम में जिस तरह से मैंने अपनी ट्रेनिंग की है, जिस तरह से आपकी जो आपके यहाँ पे फैकल्टी है, जो स्टाफ है, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग किया है, हम अपनी ट्रेनिंग आपके साथ फिर से दोहराएंगे। वो सिर्फ आप ही नहीं करेंगे, हम भी करेंगे, सो दैट जब आपका गुरु, आपका मेंटर आपके आगे चले तो आपको किसी भी किस्म का, किसी भी तरह का कोई डाउट ना हो, कोई शक ना हो, कोई शुबहा ना हो। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, मेरी जनरेशन, हमारी जनरेशन कोई और थी, ये जनरेशन कोई और है, बट उन मुश्किलों को, उन चुनौतियों को थोड़ा आपको पेशेंस रख के, जैसे चीफ वार्डन भी कहा है, थोड़ा सा आपको धैर्य रख के उससे निपटना है। ये कुछ दिन की बात है, बिलीव। होम सिकनेस जो आपके चीफ वार्डन ने कहा है, वो हमारे टाइम पे भी थी, आपके टाइम पे भी है, और आने वाली जनरेशन के टाइम पे भी होगी। बट इन योर केस यू आर 100 टाइम लकी, यू आर 100 टाइम फॉर्चुनेट देन अस। हमारे टाइम पे जब हम ट्रेनिंग के लिए गए थे तो एक लेटर जो लिखा जाता था हमारे घर वालों के द्वारा, हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे फ्रेंड्स के द्वारा, उसको पहुंचने तक हम तक 10 to 15 डेज लगते थे। और आज आपके सामने टेक्नोलॉजी है, आज के आपके सामने सब कुछ सुविधाएं हैं। आप किसी भी टाइम किसी भी वक्त अपने घर में बात कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, और वो होम सिकनेस दूर कर सकते हैं। लेकिन ये हैबिट आपको छोड़नी होगी, आपके पेरेंट्स को भी छोड़नी होगी, आपको भी छोड़नी होगी, इफ यू वांट टू अचीव योर गोल। और ये यहां से नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये आएगा यहां से, समझे? ये आपके माइंड से नहीं आएगा, ये आपके दिल से आएगा। अगर आप माइंड यूज करेंगे तो घर की याद आएगी, घर की याद आएगी तो आप अपने लक्ष्य के लिए डगमगाने लगेंगे। एक आपको मौका मिला, आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया है, एक पूरी एक बेहतरीन टीम जो हिंदुस्तान में सर्वश्रेष्ठ टीम है, आपके साथ आपके सपनों को साकार करने की लगी हुई है, वो आपके साथ अंतिम तक रहेगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों में आप देखना, आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। आपको छुट्टी मिलेगी, आप कहेंगे नहीं हमें ये ठीक है। देहरादून पूरे वर्ल्ड में इसी चीज के लिए है
ट्रेनिंग के लिए, स्कूलिंग के लिए है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी यहाँ पे है, RMC यहाँ पे है और बहुत सारे ऊंचे ऊंचे संस्थान यहाँ पे है। तो कोई वजह तो होगा, कोई कारण तो होगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और जो भी आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं आपके स्कूलिंग के अकॉर्डिंग के लिए, आपके वार्डन के लिए, आपके एक्सरसाइज के लिए, PT परेड के लिए, ये आपको फॉलो करना। हमें आपको मैराथन में जो दौड़ने वाला रनर है वो बनाना है, स्प्रिंटर नहीं बनाना है। हमें जिंदगी की रेस 100 मीटर की नहीं दौड़नी है, 200 मीटर की नहीं दौड़नी है, आपको एक मैराथन दौड़ना है। और मैराथन दौड़ने के लिए हमारी प्रैक्टिस, हमारी तैयारी भी वैसी होनी चाहिए जो हमें पता है हमें कैसे करानी है। सो जस्ट डोंट वरी, किसी चीज की किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम पे आपकी स्कूलिंग कैसे चलेगी, कब कौन सा एग्जाम है, स्कूलिंग का, आपका कंपटीशन का, हम आपको यहाँ पे A to Z सब कुछ बताएंगे। टाइम टू टाइम आपकी विजिट होंगी जिसमें ना सिर्फ एकेडमिक्स से रिलेटेड है बल्कि जो मोटिवेशनल टूर्स हैं, जो नॉलेज वाले टूर्स हैं, पिकनिक, ट्रैकिंग, IMA विजिट, कोशिश करेंगे NDA विजिट, जो जो हमारे बस में होगा हम आपके लिए करेंगे। और आप देखना कुछ टाइम बाद आपका पूरा का पूरा फोकस आपके जिस चीज के लिए आए आप वहाँ पे आ जाएगा। अभी आई कैन अंडरस्टैंड, नए नए आप अभी आए हैं, थोड़ा सा कुछ लोग विचलित हैं, कुछ बच्चे अभी शायद तालमेल बिठा नहीं पा रहे, तो नथिंग टू वरी, ये होता है। जब घर से निकलते हैं तो ये होता है, हमारे साथ भी हुआ था। जैसे कि मैंने बताया आज ही के दिन जब मैं इंडियन नेवी ज्वाइन किया था तो उसी महीने बहुत सारे कैडेट्स बीमार पड़े थे, नई जगह, नया खाना, नया रहना, नया मौसम, तो होता है ये। और देहरादून का तो मौसम उड़ीसा से तो अच्छा है, सामने ट्रेनिंग करेंगे, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। आने वाले टाइम पे भी थोड़ा मानसून रहेगा, आपको उसका जैसे सेफ्टी एक उन्होंने पॉइंट्स क्या है ध्यान रखना है, इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने में, डेली नोटिस बोर्ड देखना है आपको, आपके प्रिंसिपल, आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो स्टाफ हैं, जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, यू हैव टू फॉलो देम। दे हैव इनफ एक्सपीरियंस, वो कोई भी बात ऐसे नहीं कहेंगे जो प्रैक्टिकल ना हो। सारी की सारी जो भी इंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगे वो प्रैक्टिकल होंगे, सो दैट आपका कहीं पे भी कोई बुरा ना हो, भलाई हो, आपकी ट्रेनिंग स्मूथली चले, आपकी पढ़ाई अच्छे से चले, स्पोर्ट्स गेम अच्छे से चले, सो दैट आगे जाके ये ट्रेनिंग में आपको मजा आने लगे। और मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ ये चीज कहता हूँ, ठीक आज से 15 to 20 डेज, 1 मंथ के बाद जब मैं आपसे दोबारा मिलूंगा, फिर मैं आपसे खुद ही पूछूंगा कि अब आपको कैसा लग रहा है। हम बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे। जो लोकल टूर्नामेंट है, जो बच्चा कोई क्रिकेट खेलता है क्रिकेट, फुटबॉल खेलता है फुटबॉल, बास्केटबॉल खेलता है बास्केटबॉल, जो भी बच्चे की किसी की अदर एक्टिविटीज है, कोई कोकुलम एक्टिविटीज है, किसी की सिंगिंग, डांस, एक्टिंग, व्हाटएवर, सबका टैलेंट बाहर लाना है, बाहर आएगा, सबको बराबर का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मौका मिलेगा। ये कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं, जो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यहाँ से जो भी चीजें आपको सिखाएंगे वो काम आएगा। तो इसलिए बिल्कुल भी कोई डरने की बात नहीं है, और खुश रहे, एंजॉय करें इस टाइम को। भगवान ने, आपके पेरेंट्स ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, हर एक को नहीं मिलती। इसको दोनों हाथों से ग्रैब करके चले हमारे साथ, कदम से कदम मिला के, फिर आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। Is that clear? Yes, sir. कोई शक? No, sir. कोई शक? No, sir. सब खुश? Yes, sir. जो सबने बताया, गुप्ता जी ने बहुत कुछ कहा, कोई अकेला नहीं कर सकता, एक टीम चाहिए उसके लिए। और मेरे पास आई एम फॉर्चुनेट की कॉम्पिटेंट टीम है जो भी हमारा मिशन है उसको साथ लेके चलेगी। इसके लिए हम रियली वेरी लकी। आपके कमांडेंट दिव्यास पाल गुप्ता, जो कि फॉर्चुनेटली मेरी वाइफ भी हैं, शी वॉज दी एक्स सीनियर फैकल्टी ऑफ राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। हमारे प्रिंसिपल साहब आपको बताइए RMC में वाइस प्रिंसिपल रह चुके हैं। और ये पूरा का पूरा पैटर्न राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज पे चलेगा, जो कि पूरी इंडिया में एक है। तो आप सोच सकते हैं आपको कितना कुछ यहाँ से मिलने वाला है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है।
Is that clear? Yes, sir. हम जब आपके एज में थे और उस दौर से गुजर रहे थे, तो आमिर खान की एक मूवी आई थी कयामत से कयामत तक, आप तो दूर दूर तक कहीं नहीं थे। और उस टाइम पे एक गाना चला था, पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, आपने शायद सुना भी होगा। वो गाना सुन के हमको सभी तरह की इंस्पिरेशन मिली, कुछ जिंदगी में कुछ करने की भी, गर्लफ्रेंड बनाने की भी, और अपने यूथ को, जो हमारा उस टाइम पे यूथ था, उसको चेरिश करने की वो उस गाने से इंस्पिरेशन मिली। और मैं जब भी मौका मिलता है अपने स्टूडेंट के साथ वो गाना शेयर करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो गाना सब मेरे साथ गाएंगे। आपको शायद आपको याद भी ना हो कि आपके टाइम पे वो गाना नहीं है, लेकिन यहाँ बजेगा और ट्राई करेंगे साथ वो गाना हम सब गाने की। और ये गाना है पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा। फिर ये गाना आपके पेरेंट्स को हम भेजेंगे, आपके पेरेंट्स जब ये गाना देखेंगे और अपने बच्चों को देखेंगे कि पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, तो सच में उनको लगेगा, उनको हौसला होगा, क्योंकि थोड़े से डगमगा वो भी रहे घर में, आप नहीं डगमा रहे, थोड़े वो भी डगमगा रहे हैं घरों में, तो शायद वो भी थोड़े से कूल हो जाए और आपको फ्री छोड़ दें। जब एक बार उन्होंने डिसीजन ले लिया तो आपको फ्री छोड़ दें। सब मेरे साथ आएंगे।
अब करेंगे मिलके हम ट्रेनिंग। डियर कैडेट्स, बाय ज्वाइनिंग इंडियन आर्म फोर्सेस इस जिंदगी में आपको बहुत कुछ मिलेगा, रैंक्स, पे, पर्क्स, फैसिलिटीज, देश की सेवा करने का मौका, बट एक बहुत खूबसूरत चीज आपको मिलेगी और वो आपसे कोई नहीं छीन सकेगा जिंदगी भर, आपके कोर्स में आपके बैचमेट्स। जैसे आपकी यहाँ 2 साल की दोस्ती होगी, उसके बाद आप अपने जहाँ भी आपका सिलेक्शन होगा वहाँ पे आपके बैचमेट्स, कोर्समेट जो रहेंगे वो जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे और दे विल बी योर ट्रू फ्रेंड्स। जैसे कि मैं आपको बताया 32 सालों से मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, आज भी वो सिविल में नहीं मिलेंगे आपको। तो उस मोमेंट को, उस पल को जब हमने इंडियन नेवी ज्वाइन की थी, आज जितने भी मेरे अगर बैचमेट मुझे सुन रहे हैं जो पूरे इंडिया में है, जैसे आप पूरे इंडिया से आए हैं वो भी पूरे इंडिया में है, मैं सबको इंडियन नेवी 2 of 90 बैच की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। आज का महीना हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था 32 ईयर्स पहले, और हमारी दोस्ती ऐसे ही आगे बढ़ती रहे आने वाले और 32 सालों में। तो उसी बिहाफ पे हम एक केक कटिंग सेरेमनी करेंगे। ये केक अब आपको मिलेगा थोड़ी देर में, तब तक थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य, ये मिलेगा आपको। और गाइस, आपने उसी दिन की ट्रेनिंग में बहुत अच्छा आपके प्लाटून ने काम किया है, वेरी वेरी हैप्पी, और इसको इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब वो लड़का जो गाना गाना चाहता था, प्लीज कम फॉरवर्ड। कम ऑन लेडीज, वी कैन डू इट मोर लाउडली। है चाह लो
तेरी गाड़ी है कमर कसले, तेरे दम में है सारे मसले, तेरे टूटे हुए दिल की जमीनों पे हिम्मत की उगाड़ पसले, तेरे हाथों में करंट है तेरा और खून गर्म है तेरा, कोई तीर निशान से चूके ना, जंग के कदम रख ले, उनमें तू हथियार है, लड़ने को तैयार है, दंगे की एक चोट के जैसा हर तेरा वार है, मंजिल तुझ पे है फिदा, तेरा हाफिज है खुदा, ऐसा कर जा कि वो भी तुझसे पूछे बंदे Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.